Hello everyone and I welcome you all to today's video. But before I start today's video, a sincere apology from my side for this delay. A lot of students were requesting me कि भैया प्लीज मेक अ वीडियो ऑन जेई एडवांस और एक्चुअली मैंने प्लान भी किया था कि जेई मेन के रिजल्ट आने के बाद आई विल मेक अ वीडियो ऑन अ स्ट्रैटेजी फॉर जेई एडवांस एंड एक्चुअली जो आज का वीडियो है वो प्लान था इस मंडे जो चला गया उस दिन लॉन्च करने का, but due to some unforeseen reasons, due to some unfortunate reason, I was extremely busy throughout the week and I didn't upload it that time. Editing का मुझे time नहीं मिला, video ready था. So sorry for the delay. So let's start today's video. And in today's video, first of all, I want to congratulate everyone who have done well or not well in JEE Mains. अगर आपका रिजल्ट अच्छा हुआ या अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है. तो इसीलिए इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया है जिसने जेई मेन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उसके बाद उसने उसको चैलेंज की तरह लिया और जेई एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ऑल इंडिया रैंक 425 सिक्योर किया. अगर मैं बात करूं चैतन्या की, जो कि अब कुछ देर में आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या फील किया मेंस और एडवांस के बीच में, तो चैतन्या एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट था और हमेशा मेरे साथ compete करता था. हम हमेशा एक बार कभी मैं फर्स्ट आता बैच में, कभी चैतन्या फर्स्ट आता, तो हमारे बीच काफ़ी हेल्दी कंपटीशन था. पर जेई मेन में पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ प्रेशर और वॉट एवर द रीजन, ही डिडंट परफॉर्म वेल बट ही डिड एक्सट्रीमली वेल इन जेई एडवांस. So that is why I इन्वाइटेड चैतन्या कि प्लीज़ शेयर हिज एक्सपीरियंस कि कैसे उसने उस चीज़ को ओवरकम किया. जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को ओवरकम करना. एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता. अगर आपका जेई मेन किसी कारण से खराब गया तो घबराने की कोई बात नहीं है. यू हैव दैट पोटेंशियल, ट्रस्ट मी, यू हैव दैट पोटेंशियल कि यू कैन डू एक्सट्रीमली वेल इन एडवांस. आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होता है. देखो, सचिन एक मैच में 0 पे आउट होता है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मैच में भी वो 0 पे ही आउट होगा. हो सकता है अगले मैच में सेंचुरी भी लग जाए. तो एक एग्जाम खराब जाए इसका ये कोई मतलब नहीं कि अगला एग्जाम भी खराब जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम सुनते हैं चैतन्या को कि हाउ डिड ही फील बिटवीन एडवांस एंड मेंस एंड उसने कैसे प्रिपेयर किया उस चीज़ को. So, hi everyone, I am Chaitanya Srivastava from IIT Delhi, and it's my third year of BTech in Electrical Engineering. So, I was told to give a brief about how my journey was between JEE Mains and JEE Advance, what happened in JEE Mains, and maybe some of my experiences in JEE Advance. So, I will cut to the chase and come straight to the point. My JEE Mains was shit. Okay, not shit exactly, but that was how I felt after coming out of the center, and hurriedly found some answer keys. It was, I think, Alan's answer keys, matched the answers and came to the conclusion that I have got around 232 marks out of 360 in JEE Mains. That might sound, how's that bad, but compare that to a person who was getting really good marks in JEE main mock test earlier and has built up expectations about himself. He now is gonna do great, has built expectations of his parents, of his coaching, and all of that. And suddenly all the dreams crumbled down. That was bad. I was feeling really devastated. It's the right word to be used here because that's how I felt. Maybe some of you might be feeling so, maybe some of you might have had good JEE mains. But the thing is, look at JEE mains very objectively and then make your beliefs. Second, it's not the end of the road. First one means I got 232 in JEE mains, then got a rank of 2292 in JEE mains, and that means I could have gotten any of the best NITs with the best branches, be it Trichy, be it Warangal, because that's how the trend been. Because the other people go to IITs, and that's how the trend has been. So even after getting such a rank, I was safe. Like I had no pressure. Like I was still getting the same college that a person who has gotten 330 marks in JEE Mains will be getting, because that's how it is. So it's very important to look the facts
objectively. And now when I knew that I am secure, the only thing that was left to tackle was these expectations that I had with myself, the people had about me. So that was a tricky road, but I will feel that's a blessing in disguise too, because it just liberates you of all the pressure. Like now, no one has expectations from you. You have messed up one time, right? And now you're comfortable. Like you can do whatever you want to now. More than that, it gets easier. Like I will say it was a blessing in disguise for me because things got a bit easier because maybe if I had gotten a good rank at JEE mains, I might have gotten overboard. I might have gotten a bit happy, and maybe I don't know how it would have been. But right now I can say it was a good thing that had happened. Moving to the second part, the portion between JEE mains and advanced. So once the objective part is clear, once the expectation is sorted out, it's simple. Give tests. From the test, analyze what are the mistakes that you're doing. Part 1 being the mistakes which you do even after knowing the questions. Maybe say you click the correct option even after the question asked for the incorrect ones. So these kind of question mistakes happen. So for these kind of mistakes, what we do normally is what I did normally was we use a piece of paper while the online mode of JEE Advanced. So just basically write, it's asking for the incorrect option and just write incorrect, question number incorrect down. And that was the hack. That's a basic hack. And you can do something like that for all the mistakes which you do, and this will develop in your mind, and by the time the exam comes you are more prepared. Second kind of error which you do is when you have forgotten some concepts that you can overcome by by giving the test you will realize, oh shit, I don't know this concept, then I can study that. It's as simple as that. And if sometimes you feel maybe I need to spend some more time on this chapter, maybe you can postpone the test that you have for the next day or maybe later evening, so that you can do. And that's something which I did. It's fairly simple. So 1 month flew away very quickly, and by the time JEE Advanced came, one more thing, it's very important to give the exams in the right temperament. Like you're giving JEE Advanced in the same time slot, so your body adjusts to that kind of scenario. So by the time JEE Advanced came, I was prepared to give the exam in such manner. I had no pressure because I've already given up कि ये तो ऐसा choke कर जाएगा फिर से. So it was another comfort feeling. I just went inside the exam hall. I knew the concepts, I knew the questions. I just went there and solved it. And this was for the first time JEE Advanced was happening online, so some people got under pressure as well. But for me, it was always about solving the questions, getting the answers. So that didn't affect me much. So that's something general that happens over time, but I'm not dwelling into that. So that's how JEE Advanced happened. And if I had to give one tip about JEE Advanced, it will be actually 2 tips that I have in my mind right now. First one, the gap between the JEE Advanced paper 1 and paper 2 is really important. Don't think about what happened in paper 1. Like, it sounds simple when I say it now, but it's like same. You have to get over JEE main for getting ready for JEE Advanced. You have to get rid of paper 1 for getting ready for paper 2. Too many words? Yes. You have to forget paper 1 to get ready for paper 2. Right, perfect. So this is something that's important. And the break, have some light food. Don't we overeat during stress, but try to avoid it. So that's the second thing. And one more tip that I have is, it's highly possible when you start solving the JEE Advanced paper, you might not be able to solve the first 2-3 questions or maybe 4 questions. So just skip that portion, move ahead, solve some other questions. When you get the hang of it, then try to come back and look at those questions, and you will most probably be able to solve it. That's the tip. Coming to the conclusion, how my JEE Advanced was. So JEE Advanced was good.
I got more marks in JEE Advanced as compared to JEE Mains. I got 236 out of 360 in JEE Advanced and a rank of 413, of course the All India rank. And right now I'm at IIT Delhi, so life is not that chill as you expect during while preparing for JEE, but it's good. So yes, all the best. Bye-bye. तो देखो मैं अब आपको बताता हूँ जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो जेई मेंस के एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट होता है। जहाँ पर जेई मेंस के एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत होती है स्पीड प्लस एक्यूरेसी की अच्छा परफॉर्म करने के लिए, मेरे हिसाब से जेई एडवांस के एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत होती है सिर्फ अच्छे एक्यूरेसी की। स्पीड मैटर नहीं करता। अगर आपके पास एक्यूरेसी हो तो आप जेई एडवांस के एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इवन इफ यू स्कोर 70% स्कोर किया जेई एडवांस में, पता है रैंक क्या आएगी? अंडर 100। इवन इफ यू स्कोर एज लो एज 50%, even if you score as low as 50%, your rank will be under 1500 और 2000। ये डेटा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये लास्ट 10 ईयर परसेंटेज वर्सेस रैंक की एनालिसिस गूगल पे इजीली अवेलेबल है, वहां से मैं देख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन के लिए मात्र 25 से 30% स्कोर करना होता है जेई एडवांस में आपको। ठीक है, तो जेई एडवांस में बहुत जरूरी है एक्यूरेट होना, गलतियां अवॉइड करना, ना कि ज्यादा जल्दी क्वेश्चन बनाना। तो हैव पेशेंस, जेई एडवांस के क्वेश्चन इतने इजी नहीं होंगे कि यू पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। इट विल बी कंसेप्चुअल, यू हैव टू गो विद द बेसिक्स। तो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू गेट इट करेक्ट। ठीक है, वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, फॉर्मूला भी होंगे। बेसिकली जेई एडवांस के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो वहां पर आपको उसको स्लोली करना होगा। हड़बड़ाओगे तो नेगेटिव मार्किंग होगा और फिर आपका स्कोर अफेक्ट होगा उससे। नेक्स्ट थिंग विच इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन जेई एडवांस। सो जेई एडवांस में जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो या तो सिंगल करेक्ट टाइप होता है, या मल्टीपल करेक्ट टाइप होता है, या इंटीजर टाइप होता है। और इसमें से जो मोस्ट ट्रबलसम होता है, मोस्ट ट्रबल गिवर होता है, वो होता है मल्टीपल चॉइस टाइप। स्टूडेंट्स जनरली वहां पे गलती करके आते हैं और उसमें -2 होता है जनरली, और पार्शियल मार्क्स होता है। तो मैं क्या करता था कि कभी भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। मुझे अगर एक ऑप्शन पता है कि ये सही है तो मैं उसके साथ ही जाऊंगा। मुझे +1 तो मिलेगा, मेरा -1 तो नहीं होगा, -2 तो नहीं होगा। -2 नहीं, -6 होता है। 4 मार्क्स तो क्वेश्चन नहीं करने के, और साथ साथ आपने जो मेहनत से स्कोर किया था उससे भी आपके 2 मार्क्स चले जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस में एकदम एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वो पूछ क्या रहा है, और उस हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो आप, या एक एक करके जितना आपको पता है उतना ही करो। पार्शियल मार्क्स के पीछे जाओ, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सही करने का। ठीक है, जितना आता है मैं उतना ही करके आऊंगा, मुझे लगता है। और कि इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं, तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आप जल्दी स्टार्टिंग में कर सकते हो। उसी तरह से सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी इजी ही होते हैं। जनरली जो टफ क्वेश्चन होता है वो कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है। अगर कोई पैसेज जनरली आता है जेई एडवांस में, तो जनरली पैसेज ही टफ होता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो या लास्ट के लिए रख सकते हो। देखो एडवांस में ना क्या होता है, आपके 20 to 40% क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, और 20 to 40 क्वेश्चन फिर से डिफिकल्ट मतलब मॉडरेट लेवल के होते हैं, और रिमेनिंग 20 to 30% क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इजी क्वेश्चंस क्या है, and try to solve the easy questions. Get the easy questions right. Then go for the moderate level questions. Get them right. And then if time permits, go for the difficult one. अगर आपने easy और moderate अच्छे से कर लिया तो आप आराम से 50% स्कोर कर सकते हो। एंड इफ यू स्कोर 50%, आपकी रैंक क्या होगी? अंडर 1500। बहुत अच्छी आईआईटी मिल जाएगी आपको। स्टूडेंट इस चीज को समझते नहीं है, स्टूडेंट बस जो क्वेश्चन मिला नहीं उस पर भिड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू बी स्मार्ट इन एडवांस। You have to be smart or else there is no way out. You have to identify कि कौन सा क्वेश्चन अगर मैं करने बैठा तो मैं तुरंत कर सकता हूँ, कौन सा क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, कौन सा क्वेश्चन से बहुत टफ है। देखो 2016 में एक क्वेश्चन था, रोटेशन का क्वेश्चन था, बहुत टफ था, और पता है एंड में क्या हुआ? वो क्वेश्चन पे बोनस दिया गया। तो सोचो एग्जाम में अगर तुम उस क्वेश्चन को करने में 15 मिनट लगाते और मान लो सही भी करके आते, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फिर भी तुम्हारे दोस्त जो कि उस क्वेश्चन को पढ़ा तक नहीं, 15 मिनट उसने लगाया ही नहीं, देखा छोड़ा, उसने कहा मुझे नहीं बनाना, उसको भी उतना ही मार्क्स मिलेगा और तुम्हें भी उतना ही मार्क्स मिलेगा क्योंकि वो क्वेश्चन बोनस हो गया।
तो समझ लो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करने होंगे। जो क्वेश्चंस आपको देख के ही लग रहा है कि आपसे नहीं बनेगा या बहुत ज्यादा हार्ड है या एकदम नया सा कोई कॉन्सेप्ट आ गया, अवॉइड देम, कीप देम फॉर द लास्ट एंड डू दोज क्वेश्चंस ओनली विच यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अभी पढ़ो और अभी उसको कर सकते हो। And this last and most important thing about advanced exam, there are two papers in JEE Advanced, paper 1 and paper 2. So never ever let your performance of paper 1 decide the fate of your paper 2. पेपर 1 के परफॉर्मेंस से पेपर 2 के परफॉर्मेंस को एकदम इंडिपेंडेंट रखो। प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। So keep paper 1 and paper 2 as two independent events. Your whatever happened in paper 1 should not affect your paper 2. अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक तो मैं अपना केस लेता हूँ। देखो 2018 के एडवांस में ना पेपर काफी इजी था। हमारा टाइम पे पेपर काफी इजी था। फिजिक्स तो खास करके काफी इजी था। जनरली फिजिक्स के बारे में बोलते हैं कि जेईई एडवांस की फिजिक्स सबसे टफ होती है, बट हमारे टाइम पे फिजिक्स काफी इजी था। और मेरे फिजिक्स में आउट ऑफ 120 आई गेस 120 का था उस समय सब मिला के, तो आउट ऑफ 120 आई गेस इन फिजिक्स आई स्कोर्ड 108। ठीक है, और पेपर 1 में मैंने सिर्फ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन छोड़ा था। तो पेपर 1 देने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गई कि मेरा तो इतना अच्छा एग्जाम गया है। इतना अच्छा तो कभी जाता नहीं है। एडवांस के पेपर जनरली अच्छे नहीं आते थे क्योंकि एडवांस थोड़ा टफ होता है ना। एडवांस में जनरली स्कोर 65% 70% रहता है, पर इसमें तो मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो इसके बाद इस ओवर कॉन्फिडेंस में आने के बाद मेरा पेपर 2 क्या हुआ, मुझे लगा मैंने पेपर 1 में तो इतना स्कोर कर ही दिया है, तो पेपर 2 में मैं स्लो पड़ गया। पेपर 2 में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो इससे मेरा पेपर 2 का स्कोर काफ़ी कम हुआ कंपेयर टू पेपर 1। अगर मैं पेपर 2 में और 10-20 स्कोर कर देता तो मेरी रैंक ऑल इंडिया लेवल पे टॉप 100 में हो सकती थी। ठीक है, तो दिस इज वन केस। अनदर केस इस 2016 का मैं केस लेता हूं, जहां पे मेरे कोचिंग के काफ़ी ऐसे सीनियर्स थे जिनसे एक्सपेक्टेड था कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे जेईई एडवांस में, बट उनमें से कुछ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना उनसे एक्सपेक्टेशन थी। तो इसका रीज़न क्या था, एनालिसिस के बाद ये पता चला कि पेपर 1 2016 का काफ़ी टफ था। पेपर 1 वॉज वेरी टफ, तो पेपर 1 उनका अच्छा नहीं गया, और इस फ्रस्ट्रेशन में पेपर 2 भी अफेक्ट हो गया, जबकि पेपर 2 उतना टफ नहीं था। तो वैसे केस में वो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर 2 बहुत अच्छे से दिया, उनका रिजल्ट अच्छा आया कंपेयर टू वो जो पेपर 1 के प्रेशर में आ गए। ऐसा होता है, इट इज़ वेरी कॉमन ह्यूमन नेचर है कि पेपर 1 अगर आपका खराब गया तो आप प्रेशर में आ जाओगे कि अरे मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा एडवांस नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, मेरा जीवन व्यर्थ है। तो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स को माइंड से निकालो। पेपर 1 एक एग्जाम है, एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है। पेपर 2 एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है। हो सकता है पेपर 1 टफ रहा हो, और तुम्हारे लिए नहीं। पेपर 1 अगर टफ था तो पूरी दुनिया के लिए टफ होगा, सबके लिए टफ होगा। पेपर 2 में आपको उस पेपर 1 में क्या हुआ उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रात गई बात गई, एज सिंपल एज दैट। और पेपर 2 में आपको अपना बेस्ट देना है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको 1 या 2 घंटे का ब्रेक मिलता है बिटवीन द पेपर्स, यू शुड नॉट डिस्कस, यू शुड नॉट थिंक अबाउट द पेपर। देखो पेपर में तुमने किसी क्वेश्चन का आंसर ए किया है या बी किया है, अब एक बार एग्जाम हॉल से बाहर निकल गए उसके बाद चेंज नहीं होने वाला, तो झूठ मूठ का उस पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सोचने के लिए आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, बाद में आप सोच सकते हो कि इसका आंसर ए होगा, उसका आंसर बी होगा। समझ लो, एक बार पेपर दे दिया तो जो 2 घंटे का गैप है उसमें अच्छे से खाना खाओ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बात करो, अपने आप को रिलैक्स करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। योर बॉडी नीड रेस्ट, यू आर अगेन गोइंग फॉर अ वॉर, सो यू नीड अ रेस्ट। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू पेपर 2 रिलैक्स योरसेल्फ। जो भी चीज़ अच्छा लगता है, गेम खेलना अच्छा लगता है गेम खेलो, गाना सुनना पसंद है गाना सुनो, खाना खाना अच्छा लगता है खाना खाओ। जो भी अपने पापा मम्मी जिनके साथ कंफर्टेबल हो उनके साथ बात करो, बट डोंट डिस्कस अबाउट द पेपर। जो हुआ सो हुआ, और वो सबके लिए हुआ, तुम अकेले अफेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 के परफॉर्मेंस को पेपर 2 में बिल्कुल रिफ्लेक्ट मत होने दो। अगर पेपर 1 खराब भी गया कोई बात नहीं, पेपर 1 बहुत अच्छा गया तो भी कोई बात नहीं। आपको पेपर 2 में एकदम इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तभी आपका ओवरऑल स्कोर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जेईई एडवांस इज प्लीज अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। एडवांस में ना बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखो क्वेश्चंस आर लाइक लॉलीपॉप, आपको लगेगा कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए बट आंसर कुछ और होगा। जनरली वो वर्ड्स के साथ काफी प्ले करते हैं, बहुत ट्रिकी एक्सेप्शंस कई बार पूछे जाते हैं। तो रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, रीड एकदम लाइन टू लाइन केयरफुली एंड अवॉइड नेगेटिव मार्क। एडवांस में ना नहीं बनने से ज्यादा गलत बनने के कारण लोग सफर करते हैं, तो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। तो इसलिए इन चीजों को
अवॉइड करो। एंड लास्ट मोमेंट पे मैं यही बोलूँगा, अब कुछ नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस एक्चुअली टेस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। एडवांस में मेमोरी बेस्ड बहुत कम चीज़ें होती है। रट्टा वाले नॉलेज को एडवांस एकदम डिस्करेज करता है। एडवांस प्रमोट करता है बच्चे की कॉन्सेप्ट कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, सॉल्व फ्रॉम गुड बुक्स, ठीक है। फिजिक्स या मैथ्स में तो अच्छे अच्छे बुक्स जैसे आई रोडो हो गया, मैथ्स में आपके सिंगेज या अरिहंत की बुक से या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो बनाओ। आईआईटी के जब सब्जेक्टिव हुआ करता था ना, उस समय बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे आईआईटी में, तो वैसे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। अभी लास्ट के दिन में अपने आप को रिलैक्स करो, कुछ नया पढ़ो मत, बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो और टेस्ट की हैबिट डालो। 6 घंटे आपको एकदम अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। आपको एक 6 घंटे का एग्जाम देना है, तो उस हिसाब से अपने बॉडी को ट्रेन करो, ठीक है। आई होप यू विल डू वेरी वेल। ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड आई विश यू अ गुड लक।